بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک کو غیر ملکیوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے صاف کرنا ہے۔ اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ KPK کے لوگوں کے پاسپورٹ روکنے کی بات درست نہیں، وہ ایک ایک پاسپورٹ کی تفصیل دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتی ہے، ملک کو غیر ملکی اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد سے صاف کرنا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ہمیں ملک کو محفوظ بنانے کے ساتھ شہریوں کا ریکارڈ بھی شفاف رکھنا ہے۔ سفیر ایلبرٹ خوریف نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساگدار سے ملاقات کی ہے، جس میں پاکستان روس تعلقات، علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ساگدار نے پاکستان اور روس کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کو قابل اطمینان قرار دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح روابط کا سلسلہ جاری رکھنے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ ساگدار نے کہا کہ اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، جبکہ مذاکرات اور سفارتکاری علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ وزیر داخلہ نے فتنہ ہندوستان کے 9 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے والے سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے عزم کی عکاس ہیں۔ آپریشن رد الفتنہ 3 میں حصہ لینے والے وطن کے بہادر سپوتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری ہے اور جاری رہیں گے۔ شامل کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں مین نیشنل الیکٹریسٹی پلان 2023 تا 2027 میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ ترامیم میں بجلی کی پیداوار بڑھانے، دور دراز علاقوں میں قابل تجدید توانائی کی فراہمی، بجلی کی سرحد پار تجارت اور ترسیلی نظام میں توسیع سے متعلق اقدامات شامل ہیں۔ کابینہ کمیٹی نے مربوط توانائی پلان 2027 تا 2060 کے ہائی لیول ڈیزائن کی بھی منظوری دے دی۔ پلان کا مقصد توانائی کا تحفظ، بجلی کی مناسب قیمتوں پر فراہمی اور کم کاربن توانائی ذرائع کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں بجلی اور گیس کے شعبوں کے گردشی قرضوں کی مالی سال 2025-26 کی رپورٹس بھی پیش کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں انفارمیشن وارفیئر اور بیانیے کی جنگ انتہائی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے تاثر کو حقیقت سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مؤثر حکمت عملی سے دہشت گردی کے خلاف کامیابیاں حاصل کی گئیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں، پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران بھی پاکستان نے بیانیے کے محاذ پر مؤثر حکمت عملی اپنائی اور پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا جواب دیا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بھارتی میڈیا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتا رہا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بلوچستان کے حقوق اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ N25 شاہراہ کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے فنڈنگ کے فیصلے کی سب نے تائید کی ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکومنٹری حقائق مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارت مارکہ حق میں شکست کی تلخ حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ISPR نے نام نہاد آپریشن سندور پر بھارتی ڈاکومنٹری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے بھارتی مواد تخلیق کاروں نے نام نہاد آپریشن سندور کی انتہائی ڈرامائی، رنگین اور حقائق کے منافی داستان تیار کی۔ ترجمان پاک فوج نے بھارتی کامیابی کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعے کے مبینہ ملزمان 28 جولائی کو مارے گئے تو 7 مئی کو بھارت نے کس کو سزا دی؟ ISPR کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت ناکام بنائی، 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے اور آپریشن بنیان المرصوص میں 26 بھارتی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ ISPR نے کہا کہ فلمی مناظر جنگی حقائق، طیاروں کے نقصانات یا میدان جنگ کی صورتحال تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو مارکہ حق پر من گھڑت بیانیے کی ضرورت نہیں۔ ISPR نے واضح کیا کہ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی افواج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
आइंदा कोई फौजी मुहिमजोई हुई तो पाकिस्तान का फैसला जवाब कुन। आजम की हिदायत पर इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का अहम इजलास नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NDMA हेडक्वार्टर्स में हुआ, जिसमें मुल्क भर के मानसून सूरत हाल और सैलाबी खतरात से निपटने की कौमी तैयारियों का जायजा लिया गया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी SN इकबाल ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। इजलास में मौसम की ताज़ा पेशगोई, दरिया में पानी के भाव, हसास इलाकों और मुमकिन खतरात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने रेस्क्यू वसाइल, इनखला के इंतजाम और तैयारियों से आगाह किया। इजलास में इब्तदाई वार्निंग से बरवक्त तस्रील, इमदादी वसाइल की पेश की दस्तियाबी और हसास असला में रिस्पॉन्स इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रखने पर जोर दिया गया। SN इकबाल ने तमाम मुताल्लिका इदारों को करीबी राब्ता और हिफाजती इक़दाम पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान में समंदर किनारे नई हाइड्रोकार्बन प्ले आला मयार की गैस की पहली कामयाब दरियाफ्त हुई है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL अलामी के मुताबिक इसने ज़िला सुजावल सिंध में वाक़ अपने ऑपरेटेड सरानी ब्लॉक के दरियाफ्ती कुएं डॉल्फिन से गैस की एक मुनफरिद और अहम दरियाफ्त की है। ये जुरासिक दौर की लोअर इंडस बेसिन के चल्तन फॉर्मेशन से हाइड्रोकार्बन की सबसे पहली दरियाफ्त है। PPL ने कहा कि इस दरियाफ्त से पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी साबित हो गई है और इससे खुश्की की दलदली इलाके और उसके मुमकिना कम गहरे समुद्री तौसी इलाकों में एक नई एक्सप्लोरेशन फ्रंटियर खुल गई है। फ्रांसीसी सफ़ीर ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अलविदाई मुलाकात की। मुलाकात में इसहाक डार ने पाकिस्तान और फ्रांस के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में फ्रांसीसी सफ़ीर की खिदमात को सराहा और ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने और आला सतही रवाबित और मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक डार ने दो तरफ़ा और इलाक़ाई उमूर पर मुसलसल राब्ते और बातचीत की अहमियत भी उजागर की। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस ने अपने दौरे सिफारत के दौरान ताउन पर नायब वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के 5 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में एहतजाजी लहर तेज़ हो गई है। कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के 24 शहरों में अफ़गान बाशिंदों ने रैलियाँ और मुजाहरे किए। जर्मनी के बॉन, म्यूनिख, स्टर्टगार्ट, हैम्बर्ग, बर्लिन, केल, फ्रैंकफर्ट, कोलोन और डेस्लोफर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में तालिबान के खिलाफ एहतजाज किया गया। स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्पेन, पाकिस्तान और अमेरिका में भी मुजाहरे हुए। अफ़गान मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने ख़वातीन के हुकूक, आज़ादी इज़हार और सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तालिबान को जवाबदेह बनाने का मुतालबा किया है। टोरंटो, एम्स्टरडैम और जेनेवा में भी बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि जर्मनी में मुजाहिरीन ने रोटी, काम, आज़ादी के नारे लगाए। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में बढ़ते एहतजाज तालिबान हुकूमत की आलमी मकबूलियत और मामूल के ताल्लुकात के लिए बड़ा। ईरान ने कुर्द वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके के वज़ीर आज़म के दफ्तर पर ड्रोन हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म बरज़ानी के दफ्तर पर हमले का कोई जवाब ही पेश नहीं किया जा सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ी हम मनसब को टेलीफोन पर भी वाज़ेह किया कि हमला ईरानी सरजमीन से किए जाने का कोई सबूत नहीं। कुर्द दोस्तों को खबरदार रहना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पड़ोसियों के दरमियान नफरत के बीज बोने की कोशिश की जा रही है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने कुर्द दोस्तों को सदाम और दाइश से महफूज रखा और ईरान शुक्रगुजार है कि कुर्द हमारी सरहद पर सिक्योरिटी मुहैया कर रहे हैं। याद रहे कि इराक़ के कुर्दिस्तान इलाके के वज़ीर आज़म मसरूर बरज़ानी और इंटेलिजेंस चीफ के घर पर पीर को ड्रोन हमले किए गए थे। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़ये की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने ताहाल कबूल नहीं की। शामिल करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने जवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पॉलिसी पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हर माह होगा। उन्होंने ख़वातीन समेत मुल्क भर के नौजवानों को हुनरमंद बनाने और खुसूसन बलूचिस्तान और KPK के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। इजलास में बताया गया कि नौजवानों को मुल्की और गैर मुल्की रोज़गार की मार्केट की तलब के मुताबिक तरबियत दी जाए, जबकि डिजिटल यूथ हब के ज़रिए अंदरून और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े एक प्लेटफॉर्म पर फराहम किए जा रहे हैं। तालीमी इदारों में यूथ डेवलपमेंट सेल्स के क़याम के ज़रिए नौजवानों को कैरियर काउंसलिंग और हुनरमंदी के मौक़ों से भी आगाह किया जाएगा।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए उसे प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है कि पाकिस्तान ने भारत में दहशत गर्दी के लिए लोग भेजे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और मुज़ाहिरा है। भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मौजूदा इल्ज़ाम ठहरा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारत महदूद सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान को मौजूदा इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरून मुल्क अक़लियतों को दबा रहा है, इख्तिलाफ राय को खामोश भी कर रहा है। भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी बरामद और दहशत गर्दों की मावनत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी से नहीं हटा सकते। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की बैरून मुल्क तकरीबी सरगर्मियों से नहीं हटा सकते। देंगे आपको सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना में अहम फैसले किए गए हैं। सिंध में 2026 के लिए गंदम की दस्तयाबी 38,40,000 मेट्रिक टन है। गंदम के ज़खायर 11,80,000 से कम होकर 7 लाख मेट्रिक टन रह गए हैं। कार्रवाइयों में 1,90,000 मेट्रिक टन गंदम जब्त की गई। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन का कहना था कि गंदम ज़ख़ीरा करने की हद 1 से बढ़ाकर 3 माह तक करने की मंजूरी दी गई। आटे की कीमत 112 रुपये फ़ी किलो बरकरार रखने की शर्त आयद की गई है। पास्को सिंध को 2,23,455 मेट्रिक टन गंदम फराहम करेगा। 25 एकड़ तक गंदम काश्तकारों के लिए DAP सब्सिडी पैकेज मंजूर कर दिया। नए किसानों की रजिस्ट्रेशन मौजूदा रजिस्ट्रेशन की दोबारा तस्दीक की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी के उतार चढ़ाव का बोझ सिंध के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। DAP सब्सिडी गंदम की इमदादी कीमत के लिए वज़ीर आला ने 4 रुकनी कमेटी कायम की। गुज़िश्ता मरहले में 45 अरब जबकि 20 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। MQM पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि MQM वालों की अब सियासत ख़त्म हो चुकी, नए सूबों से मुतालिक फ़ैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के आगाज़ पर कौम के नाम पैगाम में दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी को कौमी ज़िम्मेदारी करार दिया है। सदर मुमलिकत के मुताबिक मानसून शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलात हयातियाती तनू, आबी वसाइल और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करते हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए जंगलात का फ़रोग़ नागुज़ीर है। सदर जरदारी ने शहरियों, नौजवानों, तालिबी इदारों और मुकामी आबादी पर जोर दिया कि शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और मुकामी और मौजू दरख्तों की इकसाम लगाने पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि आज लगाए गए दरख्त आने वाली नस्लों की सेहतमंद और बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत है।